जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो भाई मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं, बहुत डिमांडेड जो थी कि जाकिर नायक की वीडियो लेकर के आओ, जाकिर नायक की वीडियो लेकर के आओ, तो मैं लेकर के आ गया हूं जाकिर नायक का वीडियो। मैं फैक्चुअली भी चीज़ों को बताऊंगा। अगर ये मतलब कोई भी श्लोक का गलत कोट करते हैं तो मैं उसका विद रेफरेंस आपको बताऊंगा कि उसका रियल मीनिंग क्या है। ठीक है, उसमें अब कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है कि आप गुस्सा करें कि आप मान नहीं रहे हो जाकिर नायक की बात। ठीक है, तो जहाँ पर गलत बोला जाएगा तो उसको करेक्ट किया जाएगा यार। फिर ऐसे मैं एक्सेप्ट थोड़ा ना कर लूँगा कि जाकिर ने कहा है तो ठीक ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई देख लेना, मैं क्लियर करूँगा, विद प्रूफ क्लियर करूँगा सारा हिसाब किताब। ठीक है, हाँ। तो आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है वर राम एंड कृष्णा मैसेंजर ऑफ गॉड बाय जाकिर नायक। मैं पहले कह चुका हूँ, राम एंड कृष्णा आर नॉट मैसेंजर ऑफ गॉड। मैसेंजर का कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में कहीं नहीं है। राम एंड कृष्णा आर द गॉड, और वो दो नहीं है या शिवा तीन नहीं है, बहुत सारे भी नहीं है, एक ही गॉड हैं। उन गॉड एक ही है, उनके रूप बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या आप बोलते हैं, फिर देखते हैं किस किस श्लोक को ये कोट करते हैं, फिर उसका देखेंगे अपन। ठीक है, तो द ट्रू कॉल इस्लाम का वीडियो है, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें, थोड़ा प्यार दिखाएं हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लें, साथ में मेरे सोशल मीडिया हैंडल को जाकर के मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, फिर चर्चा करेंगे इस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। If you say that Ram is an avatar, Au and Tra means sent from Almighty God. If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure, but even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 स्पीक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में है। बुक नंबर 20 नंबर 127 क्या है ये बताने क्या है? अथर्ववेद बुक नंबर 20 लिखा क्या है ये देखिए। हिम नंबर 21 वर्स नंबर 6 पढ़िए। अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 21 वर्स नंबर 7। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 53 वर्स नंबर 9 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who is worth praising. One who praises. One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad. If you read in Psalm Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Psalm Ved, Indra, chapter number 2. Hymn number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 8. In Rigved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharvaved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharvaved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. He is mentioned as Ahmad. He is mentioned as Narashansa. Narashansa means, Nar means man, Shansa means praise. A man who's praiseworthy. If you translate into Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rigved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rigved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rigved, book number 1, mantra number, hymn number 106, mantra number 4. Rigved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rigved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rigved, book number 5, mantra number 5. Mantra number 2, Rigved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2, Yajurved, chapter number 20, verse 37, Yajurved, chapter number 20, verse 57, Yajurved, chapter number 21, verse number 31, Yajurved, chapter number 21, verse number 57, Yajurved, 28, verse number 2, Yajurved, chapter number 28, verse number 19, Yajurved, chapter number 22, verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scripture about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. That his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He will be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He will be born in the family of
the chief of the village of Sambala, that is chief of संबाला Makkah, is that is not in Quraysh. मक्का He में, had four संबाला भारत companions में, talking Khulfa Rashidin, on and on. If you are, संबाला जगह है भारत if में। you really believe in your scriptures, अबे you have to यार, follow and संबाला जगह है भारत believe में। in the last and final messenger prophet Muhammad, peace be upon him. हे ईश्वर, ओ गॉड, ऐसा कैसे भाई, इतना गलत कोट किया है ना। मैं आपको, देखो, सबसे पहले आप ये श्लोक देखें, क्या लिखा है, भगवान राम का है। भगवान राम क्या कह रहे हैं, मेरी जय करो, मैं भगवान हूं। अब भगवान कृष्ण का आप देखें, क्या कह रहे हैं कि सारे लोग, सब कुछ मुझ में ही समा जाता है, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे ही अंदर सारी गैलेक्सीज हैं। ठीक है, तो ये श्लोक का अर्थ समझें आप, ये कह रहा है, क्लियर है। ये श्लोका है भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 श्लोक संख्या 55। ठीक है, भविष्य पुराण का मैं आपको हवाला देता हूं, जिन्होंने कहा कि भविष्य पुराण में मोहम्मद का जिक्र है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिक्र क्या है। आप देखें, बात होती है ना कि भाई टीचर आपके घर आया, आपके पेरेंट्स से मुलाकात करी, आप कहीं बाहर गए हैं और आपको पता लगा टीचर घर आए हैं, आप बड़े खुश हो रहे हैं, अरे वाह, आज तो जो है कि हमारे मम्मी पापा बड़ी तारीफ करेंगे कि आज टीचर्स ने मेरी कितनी तारीफ करी होंगी। अरे टीचर तुम्हारी बुराइयां करके गया है खूब, तो आके तुम्हारी कुटाई होगी फिर अच्छे से, है ना। तो भाई मोहम्मद के बारे में लिखा है, बिल्कुल मोहम्मद लिखा है, क्या लिखा है ये भी तो देखो यार, हैं क्या लिखा है ये भी तो देखो। ठीक है, तो ये आप श्लोक पढ़ें, लिंग छेदी शिखा वाला, शिखाहीना, शिखा नहीं होगी, अब लिंग छेदी, इसका मतलब आप समझ लेना, मैं नहीं बताने वाला। और ठीक है, का नामक एक, मतलब मैं नहीं बताऊंगा यार, क्योंकि फिर मैं, देखो, इसका आप अर्थ खुद पढ़ लें, आपको हिंदी आती है तो देखो लिखा हुआ है। ठीक है, आप खुद पढ़ लें, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। मैं क्योंकि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हेट नहीं फैलाना चाहता, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, तो ये लिखा है मोहम्मद के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई बात। इन्होंने हवाले दिए, वेद वर्ष नंबर ये, श्लोक का नंबर ये। भविष्य पुराण आपका 5000 साल पहले ऋषि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। 5000 साल पहले आपके कुरान को रचित हुए 1400 साल हुए हैं बस, और 5000 साल पहले आपके मोहम्मद का जिक्र इसमें कर दिया गया था। पर किस रूप में किया गया था, वो रूप भी आप जान लें कि बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लोरीफाई किया गया था या फिर कुछ और कहा गया है, तो आप खुद देखें, आप खुद पढ़ें, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी। ठीक है ना, क्योंकि मैं बोलूँगा तो फिर ऐसा हो जाएगा कि भाई नफरतें फैला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। मैंने श्लोक यहाँ पे लिख दिया है, आप आराम से इसका मीनिंग देखें, पढ़ें। जाकिर नायक ने सही कोट किया कि भविष्य पुराण में इसका जिक्र है, अध्याय नंबर जो है कि ये वर्ष नंबर 3 था। हाँ बिल्कुल सही है, पर श्लोक में लिखा क्या है ये भी तो सुनो। अपने ही मर्जी से आप जो है कि कुछ भी कर देते हो, हैं, क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये है आपके मोहम्मद के बारे में लिखा हुआ। तो उन्होंने जितने भी वर्सेस कोट करे, सारे गलत करे, सारे गलत करे, A to Z एक भी चीज उन्होंने सही नहीं बोली। बस इतना, बस ये चीज सही बोली कि मोहम्मद का जिक्र है हमारे ग्रंथों में, पर जिक्र के रूप में हम जो है, जिक्र के रूप में उसे विलन दिखाया गया है, बट आप हीरो दिखा रहे हैं, उसको हीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी देखो हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी तारीफ की गई है। अरे उसका मतलब तो पढ़ो, प्रूफ विद प्रूफ में लेके आया हूं। जाकिर नायक तो आपको प्रूफ नहीं दिखाया कि ये रहा श्लोक, ये लो, इसका मतलब लो। श्लोक बताया उन्होंने, लिंग छेदी वाला नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर देखिए आप, ये श्लोक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। रेगिस्तान से आएंगे, वही है ये श्लोक पूरा, पढ़ें आप, कुछ इसका मीनिंग ढूंढे, मैं नहीं बताऊंगा यार, मैं क्यों बताऊं। ठीक है, तो मैंने आपको भी प्रूफ बताया है, और भगवान कृष्ण का मैंने आपको प्रूफ बता दिया। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, पूरे टाइम को स्टॉप करके, सारे प्लैनेट्स रोक करके अर्जुन को बोला, क्या बोला कि मुझे प्रणाम कर, मेरे पैर पकड़। अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं, मैं किसकी पूजा करूं, मैं क्या करूं। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मेरे अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, मैं ही एकमात्र हूं जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी इबादत करते हैं सब लोग। ठीक है, सब मरने के बाद मुझ तक ही पहुंचते हैं, सारे यूनिवर्सेस मुझसे ही बनते हैं, मैं ही सबका जन्मदाता हूं, मैं ही सबको जन्म देता हूं, मैं ही सबका काल हूं, यहां सबकी मृत्यु बनकर के खड़ा हूं, मानव शरीर लेकर के आया हूं। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं मानव हूं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन कहते हैं मैं तो आपको अब तक दोस्त समझता रहा अपना, आप मेरे साथ शरीर, आप बॉडी, आप इंसान के रूप में आए थे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो भगवान थे। और उनका इतना बड़ा विशाल रूप देख करके कि सारे प्लैनेट्स उनके अंदर हैं, सारे प्लैनेट्स इतने सारे, पूरी गैलेक्सीज इतनी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं उनके अंदर,
तो क्या कहते हैं वो, शिव शंकर, माता दुर्गा, माता काली, भगवान राम, राम पिछले जन्म पिछले अवतार में मैं राम था, मैं ही वामन था, ठीक है, ये सब मेरे अंदर हैं, सब में मैं हूं, ठीक है ना, मैं एक ही हूं, मैं एक ही हूं, मेरी ही पूजा की जाती है। ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं, या श्लोक आपने देखा होगा यार। तो बहुत ही गलत कोट कर रहे हैं जाकिर नायक, मैं सच बता रहा हूं, बहुत ही गलत कोट करा है इन्होंने। मैसेंजर ऑफ गॉड तो मतलब ही नहीं, मैसेंजर ऑफ गॉड का तो कोई, मैसेंजर का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैसेंजर का कॉन्सेप्ट आपके इस्लाम में है कि मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद थे, और सन का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी में है, सन ऑफ गॉड जीसस, ठीक है, यीशु। बट हमारे यहाँ ना सन का कॉन्सेप्ट है ना मैसेंजर का कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ सीधा गॉड का कॉन्सेप्ट है, कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं बीच में भाई। भगवान शिव ने कहा है मैं परब्रह्म हूं, भगवान विष्णु ने कहा है मैं परब्रह्म हूं, भगवान राम ने कहा है मेरी जय जयकार करो मैं ही परब्रह्म हूं, भगवान कृष्ण ने तो कह ही दिया है कुरुक्षेत्र की भूमि में कि मैं परमात्मा हूं, मेरे सिवा और कोई नहीं है, मैं ही एकमात्र इकलौता भगवान हूं, मेरी ही पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और ये सब सारे टाइम को रोक करके, पूरा समय रोक दिया, सूरज को रोक दिया, पृथ्वी को रोक दिया, पूरी गैलेक्सी रोक दी, सारे ब्लैक होल्स रोक दिए, उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये ज्ञान दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि में। आज भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है, वहाँ पे 5000 साल पुराने वेपन्स निकलते हैं, महाभारत में जो यूज़ हुए थे, द बिगेस्ट बैटल। वो बैटल क्यों हुई थी? क्योंकि अच्छे और बुरे लोगों के बीच वो बैटल हुई थी। अब वो कराना आवश्यक था बैटल, वो एक लीला थी, ठीक है। लीला शब्द आप, अगर आप हिंदुइज्म को समझना चाहते हैं तो लीला शब्द को आपको समझना होगा, वरना आप इसी चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे कि राम तो भगवान थे, तो वो माता सीता को छुड़ाने के लिए पुल बनाते फिर रहे थे, वानरों की सेना बना रहे थे। तो भाई आपने अगर लीला शब्द का अर्थ नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो आप हिंदुइज्म को समझ ही नहीं सकते। तो आपको लीला का अर्थ समझना पड़ेगा गहराई से, फिर आप हिंदुइज्म की बात करना। अगर आपको लीला का मतलब नहीं पता तो आप भगवान को नहीं समझ सकते। संबाला विलेज की इन्होंने बात करी है, संबाला इंडिया में है यार, भाई कैसी बात कर रहे हो यार। गॉड, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। इनको थोड़ा ठीक ठीक, अगर ठीक से कोट करेंगे तो इनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे ना ज़्यादा, ये भी बात है ना भाई। अगर ये ठीक ठीक कोट कर देंगे, सच्चाई सामने आ जाएगी कि द ओनली रियल धर्मा इज सनातन धर्मा, तो फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये भी तो बात है भाई। तो गलत कोट करके अपने इस्लाम के फॉलोअर्स बढ़ाते हैं ये, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस्लाम सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है पूरी दुनिया में। वाई? बिकॉज योर स्कॉलर्स आर लाइक दिस, जो सब कुछ गलत कोट करते हैं, सब कुछ गलत कोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि गलत कोट कर रहे हैं, सब कुछ पूरा एक तरीके से गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, ठीक है, यूथ को। और उसमें से हिंदू यूथ भी आते हैं, क्योंकि हिंदू हो गया ढक्कन, हिंदू ने अपना धर्म तो पढ़ा नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी के CEO तो बन गए हैं हिंदू, बट धर्म का उसे ज्ञान है नहीं। मैं तो यहाँ पे प्रूफ बात कर रहा हूँ, पर हर किसी को इतना ज्ञान थोड़ी है हिंदू धर्म में, सब अपनी लाइफ में मजे में है, क्योंकि यहाँ पे कोई अनिवार्यता थोड़ी है, कंपलसरी थोड़ी है। आप पे तो कंपल्शन है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, ये सब करना है, मस्जिद जाना है। हमारे में कंपल्शन थोड़ी है, आप सालों साल मत जाओ मंदिर, मत करो आप पूजा, मत लगाओ टीका, कोई कुछ थोड़ी कहेगा। तो इसलिए सब धर्म से दूर हुए पड़े हैं, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे मालूम था तो मैंने यहाँ पे इनको करेक्ट किया कि भाई ये चीज़ गलत बोल रहे हैं, ये जिक्र है ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, द वन एंड ओनली गॉड, जय जय श्री राम।